Common cause versus Union of India and others. Common cause versus Union of India and others. What it said, in this case, Supreme Court reiterated its earlier recommendation, what it had said in Aruna Schonborg case, euthanasia case. क्या बोला? इन्होंने बोला सेक्शन 309 को decriminalize कर दीजिए. It again stressed on the anachronistic law, section 309, and emphasized that it should be decriminalized. लिख लीजिए इसको. Recommended Parliament should, in this case, Supreme Court recommended. In this case, Supreme Court recommended that Parliament should consider decriminalizing the offence under section 309. ठीक है, ये होगी कहानी इसकी. अब 309 पे क्या है स्टांस गवर्नमेंट का, ये अपने सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फिर से बोल दिया. व्हाट दे आर ट्राइंग, अभी इस पे कोई फाइनल कॉल नहीं लिया है पार्लियामेंट ने. इट स्टैंड्स एज इट इज अभी तक. ठीक है, बट देयर आर सीरियस रिकमेंडेशंस अगेंस्ट इट. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का भी मैंने आपसे बोल चुका हूं. दैट इज ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि डिक्रिमिनलाइज कर दो इसको. ठीक है ना. अब कल हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया था हमने, कल हम बात कर चुके हैं इस पे हल्की फुल्की. संथारा एंड साले खाना, इसको दो में से कुछ भी बोलते हैं. ये बेसिकली जेन्स में एक प्रैक्टिस है. इसमें होता क्या है, अ पर्सन फास्ट unto death when it is a belief amongst them कि निर्वाणा अटेन होगा इससे. they are done with worldly affairs, now they want to attain spirituality attain करना चाहते हैं. then what they do is they fast unto death, है ना. अब इसमें इशू ये है, does it involve, is it right to die, क्या ये इन्वॉल्व करता है राइट टू डाई? डज इट वायलेट आर्टिकल 21? दैट इज वाई वी आर स्टडीइंग इट, है ना. हम क्यों ये पढ़ रहे हैं? फॉर दिस रीजन. क्या ये आर्टिकल 21 वायलेट करता है? क्या ये राइट टू डाई इन्वोक करता है? इसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा. Santhara is a religious practice followed by Jains. Santhara is a religious practice followed by the Jains. It is seen as a spiritual decision. It is seen as a spiritual decision taken when a person feels. It is seen as a spiritual decision taken when a person feels that life has served its purpose for him. हो गया मेरा सब कुछ. That life has served its purpose for him. It is a religious exercise. It is a religious exercise to abandon the body. It is a religious exercise to abandon the body and purify one's soul. And purify one's soul. For this reason, a Santhara death, is not to be mourned. ऐसी डेथ का मातम नहीं मनाया जाता है. अब कुछ लोग आए जिन्होंने इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया कि ये वायलेट करता है फ्री चॉइस, ये किसी की जिंदगी लेता है, इट वायलेट्स राइट टू लाइफ. उनके कुछ आर्ग्यूमेंट से देख लेते हैं क्या है. इट इज आर्ग्यूड दैट संथारा इज नथिंग. It is argued that Santhara is nothing but a prolonged attempt to suicide, but a prolonged attempt to commit suicide. It is argued that Santhara is nothing but a prolonged attempt to commit suicide.
It is against the basic dignity of the individual. And it is against the right to life under Article 21. It is against the basic dignity of the individual, and it is against the right to life under Article 21. The so-called religious sanction, the so-called religious sanction, the so-called religious sanction is no ground to continue with Santhara. Is no ground to continue with Santhara. Is no ground to continue with Santhara. And it should be criminalized. ये था जिन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, ठीक है। अब कुछ लोग आए जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, उन्होंने बोला सुसाइड और संथारा में डिफरेंस है। सुसाइड में बंदा इमोशनल होता है, इमोशंस के प्रेशर में मेंटली स्टेबल नहीं होता है, तब जाके वो डिसीजन लेता है टू एंड हिज और हर लाइफ। बट संथारा इज विद फुल इंटेंट, फुल इंटेंट होता है इसमें, नॉलेज होता है इसमें बंदे को पूरा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी डब्ड एज अ सुसाइड। और इंस्टेंट डेथ तो चलो वो मरने का तरीका इज अ लिटिल डिफरेंट, दैट इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। देखो दो चीजें होती है लॉ में, कोई भी क्राइम, ये आपको आपके बात से मुझे याद आ गया इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, अदरवाइज इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस। एनी क्राइम दैट इज कमिटेड इन लॉ हैज टू पार्ट्स, ठीक है। एक बोलते हैं मेंस रिया, दूसरा होता है एक्टस रियस। ये लैटिन टर्म्स है ही और लैटिन लग भी रहे हैं ना। आप सोच रहे होंगे ये लैटिन क्या शुरू किया हमने पढ़ना। सुनो, ये जरूरत नहीं है, आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। मेंस रिया इज द इंटेंट, ठीक है। इंटेंट क्राइम के पीछे क्या है, समझ रहे हो। इसको कनेक्ट नहीं करना, मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं क्यों किसी क्राइम को कब सीरियस माना जाता है, क्यों, व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, व्हाई इज इट कंसिडर्ड द वे इट इज। एक्टस रियस होता है एक्ट, बेसिकली द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। कोई बंदा आया, मेरे हाथ में बैट है, मैं किसी को डिलिबरेटली सर पे मार रहा हूं, आई हैव फुल इंटेंट टू किल हिम, है ना, मुझे पता है इससे इसकी मौत हो सकती है। दैट मीन्स मेंस रिया कॉम्पोनेंट इज प्रेजेंट, एक्टस रियस मतलब द एक्ट ऑफ हिटिंग हिम विद द बैट, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। दोनों चीजें मिलके क्या बनाएंगे, क्राइम विद फुल इंटेंट एंड द एक्ट तो है ही। अब मान लो मेरे में इंटेंट नहीं होता, बट वो मर जाएगा मेरे एक्ट से। मेरे हाथ में ऐसे ही बैट है, मैं घुमा रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं, मुझे पता नहीं पीछे से किसी के सर पे आ गया, आई हैड नो इंटेंट ऑफ हिटिंग हिम और हर, बट द पर्सन डाइड। उस केस में एक्ट इज देयर बट द इंटेंट इज नॉट देयर। समझ रहे हो आप लोग। द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस इज लेस, ये सिवियर ऑफेंस नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने उसको डेलिबरेटली नहीं मारा, मेरा इंटेंट नहीं था। समझ रहे हो आप बात, जो आप बोल रहे हो ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं, आपने क्या बोला था अभी, इंस्टेंट डेथ। सो दैट वुड बी एक्ट, उसमें इशू इंटेंट का है। जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें इशू इज ऑफ इंटेंट, वी आर डिस्कसिंग इंटेंट कि क्या उसको फुल इंटेंट है, वी आर सेइंग फुल इंटेंट है। इमोशंस जो संथारा है उसका इंटेंट है अपने साथ, मतलब अपने आप के साथ वो जो कर रहा है, नॉलेज भी है, वहां पे इमोशंस है। ये इसको इसके साथ जोड़ना मत, ये बस आपको जनरली बोल रहा हूं किसी भी क्राइम में क्या सीन रहता है, ठीक है। वो सेल्फ डिफेंस इट इज एन एक्सेप्शन टू मर्डर, ये तो लॉ की क्लास हो जाएगी, वो है, दैट इज देयर। सेल्फ डिफेंस प्रूव करना है आपको, दैट इज एन एक्सेप्शन टू मर्डर, दैट कैन बी डन, ठीक है। सर एक्चुअली जैसा आपने कहा था, आपने भी कहा कि स्ट्राइक मतलब जब कोई सुसाइड करता है, हाँ जी, वो उस वक्त इमोशनली फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना सर। हाँ जी, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इसमें इंस्टेंट डेथ नहीं होती है, बिकॉज उसको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तभी तो सुसाइड करेगा ना। अगर वो सोच पाएगा तब नहीं करेगा सुसाइड। मगर जो हम संथारा कह रहे हैं, दैट इज
first until death. हाँ। It can go बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तब तक समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, अगर मैं एक सब कर रहा हूँ। अग्रीड अग्रीड अग्रीड, वही वो इसीलिए हम कहते हैं उसको नॉलेज रहता है, उसको पता होता है आउटकम क्या है इसका, एंड इट इज अ प्रोसेस। सुसाइड जो है, आपकी बात सही है, सुसाइड इज इंस्टेंटेनियस, है ना। तो फॉर द सेक ऑफ लॉ वी से कि उसमें नॉलेज रहता है, इसमें नहीं रहता है। इसमें जो इसके डिफेंडर्स थे, जो संतारा के डिफेंडर्स थे, उन्होंने ये भी बोला कि इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, सो यू कैन नॉट क्लब इट अंडर द सेक्शन 309 एंड से दैट दिस इज अ सुसाइड। दिस इज अ रिचुअल एंड अ प्रैक्टिस अमंग्स जैन्स, उनका बिलीफ है ये, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाउएवर द सपोर्टर्स ऑफ संतारा, however the supporters of Santhara argue however the supporters of Santhara argue that it cannot be considered suicide, because it is something one does with full knowledge and intent. One does with full knowledge and intent. Unlike suicide, which is hasty, which is emotional and hasty. Further, under Article 25, the Constitution recognizes the right to freedom of religion. Which includes the right to follow religious practices, in which one believes. There is no law that prohibits the Santhara to be practiced. There is no law that prohibits the Santhara to be practiced. Therefore, till it is legally prohibited, there is no law that prohibits the Santhara to be practiced. There is no law that prohibits the Santhara to be practiced. Therefore, till it's legally prohibited, it is not illegal to practice Santhara. It is not illegal to practice Santhara. ठीक है जी, we are done with 21. ठीक है, अब आएगा आर्टिकल 21 ए। ठीक है, ये ए क्यों लगा रहता है, ये आपने देखा कभी बहुत सारे आर्टिकल्स? एब्सोल्युटली, ये याद रखना, जिस किसी में भी ए है वो जानना अगर इंपॉर्टेंट है तो वो जानना इंपॉर्टेंट है। फिर ये किस अमेंडमेंट से आया, वही क्वेश्चन आता है आपको आपके एग्जाम में। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 ए क्या है? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसके बीच में, क्या एज ग्रुप के बीच में? 6 to 14 years। लेकिन इट टॉक्स अबाउट फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सारी एजुकेशन नहीं, इंजीनियर फ्री में नहीं बनेंगे आप, डॉक्टर फ्री में नहीं बनेंगे, ओनली कंपल्सरी एजुकेशन होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बीच में। ठीक है ना। अब ये किससे आया था?
जैसे ये ए कहां से आया बताओ, एनीवन? 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट आया था, कौन से साल में आया था बताइए? 2002। सब पता है यार आप लोगों को, देखो जबरदस्त बच्चे हैं यहाँ पे हमारे। अब क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट 2002, इसमें यही याद रखना, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन आएगा ये हम आगे देख लेंगे। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, तीन है। सिमिलर प्रोविजन इज देयर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिमिलर प्रोविजन, सेम नहीं, सिमिलर। फंडामेंटल ड्यूटी इसमें भी है और इसमें भी है। आपको ये पूछेगा, स्टेटमेंट देगा, नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कैसे, स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आपको विच ऑफ द स्टेटमेंट लिख के आएगा, इज अ स्टेटमेंट होगा, फिर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या क्या, और नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, व्हाटएवर, ऐसे होगा। तो आपको वो नुआंसेस, वो डिफरेंसेस तीन को कंपेयर करके सामने रखना है कि डिफरेंस है क्या, ठीक है। वो हम देख लेंगे एज वी डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड विल कंपेयर देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा ये क्या था, अब देखो, अभी तो आपने राइट टू लाइफ पढ़ा है ना। राइट टू लाइफ में आपने देखा डिग्निटी, चॉइस, लिबर्टी। इट वॉज रियलाइज दैट राइट, ये राइट इनकम्प्लीट है अगर आप लोगों को राइट टू एजुकेशन नहीं देते हैं। अगर उनको, बिकॉज व्हाट एजुकेशन डज, वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग पढ़े हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कंट्री में जिनको हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट टू हैव द लग्जरी ऑफ एजुकेशन और द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन, जो पढ़े नहीं है। आप देखो ना, एजुकेशन से इफेक्ट क्या पड़ता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कर्व करता है, आपके सर्वाइवल चांसेस कर्व होते हैं। आप सोचो आज की दुनिया में आजकल जो एजुकेटेड ना हो, अगर अनपढ़ होता है, उसकी कितने चैलेंजेस है लाइफ में। उसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, उसका सर्वाइवल लिमिटेड है। सो इट वाज रियलाइज दैट इट इज नेसेसरी टू हैव राइट टू एजुकेशन एज एन एडजंक्ट टू राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का रियलाइज होना है पॉसिबल ही नहीं है अगर बंदे को राइट टू एजुकेशन नहीं है। दैट इज व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 21 as Article 21A, because it is an important right, it is an adjunct to right to life। इसीलिए इसको कहीं और भी लगा सकते थे, 19(1)G, E, F कहीं पे भी लगा सकते थे, Z कहीं पे भी, but it was introduced after 21 because of this reason। कनेक्टेड है किससे, आपके राइट टू लाइफ से। अगर आपको रियलाइज करना है राइट टू लाइफ, इट हैज टू बी देयर, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब किया जाता है सेकेंड रेवोल्यूशन in the chapter of citizens rights, ठीक है। इस वाले को, ये आपके इसमें लिखा है, ये कोई इशू नहीं है वैसा। अब जो मैंने आपसे अभी बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो ऑलरेडी था, मगर इशू क्या था, फिर क्यों हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। एक तो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, वो पेरेंट्स पे ड्यूटी लगाता है, पेरेंट्स पे, है ना। एंड इट इज मेयरली एन इंस्ट्रक्शन है, पेरेंट्स पे ड्यूटी है। सेकेंडली इट इज नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नॉट एनफोर्सेबल। अब क्या डिफरेंस आया अगर ये फंडामेंटल राइट बना, बताइए आप लोग मुझे, किस पे। सबसे पहली बात, जैसे आपने बोला इट विल बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, कौन करेगा एनफोर्स, किस पे है, किस पे ये अब व्हाट, हाउ डिड द नेचर चेंज नाउ, एब्सोल्युटली। नाउ इट इज नॉट पेरेंट्स, इट इज द स्टेट, इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ द पेरेंट्स। नाउ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आप देंगे हर एक को, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने बना लिया, ठीक है, आपने देख लिया कि पढ़ना है 45 पे, अदरवाइज आर्टिकल 45 डेल्ट विद दिस, 45 में ऑलरेडी था ये। अब इशू आ गया, राइट टू एजुकेशन तो आपने दे दिया, ये किस पे ड्यूटी आ गई, स्टेट में, स्टेट पे आ गई।
अब इसको अप्लाई भी करना है. हाउ डू वी डू दैट? हाउ डू वी डू दैट? इट्स अ हरक्यूलियन टास्क. मतलब आपको हर एक बच्चे को एजुकेशन देनी है. उस वो भी चलो फ्री तो ठीक था, लेकिन हाँ फ्री में कैसे करोगे? एब्सोल्युटली लेजिस्लेशन. दैट इज व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट. इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आरटीई लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को इंप्लीमेंट हम करेंगे इससे. हर एक बच्चे को उसके घर के 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको स्कूल प्रोवाइड करना है. तभी तो रियलाइज होगा. मैं अगर 10 किलोमीटर दूर उसका स्कूल रखता हूं, वो उसके लिए प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो गया, बैरियर बन गया. कहां आएगा 20 किलोमीटर? मतलब 3 किलोमीटर के रेडियस में हर एक बच्चे को आपको स्कूलिंग प्रोवाइड करनी है. ठीक है, वन ऑफ द नेसेसरी प्रोविजंस. अब इसको थोड़ा आप लिख लीजिए, विल राइट अबाउट इट. जो आपके मतलब आपकी बुक में लिखा है ये देखो, जब क्लास कर रहे हो ना, एट दैट टाइम डोंट गेट इनटू द बुक में ढूंढने मत लगो चीजें. पता क्या होगा इससे? देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन. साइकोलॉजी में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन. व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? कोई है साइकोलॉजी ऑप्शन वाला इधर? स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ ह्यूमंस इज लिमिटेड. एक काम पे आप एक टाइम पे आप कम काम कर सकते हो. ठीक है, एंड टाइम बाउंड है. मतलब एक तो आप फोकस कम चीजों पे कर सकते हो, और अगर आपने अपना अटेंशन डिवाइड कर दिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी एज फोकस्ड. इसलिए प्रॉब्लम ये होता है. अगर आपको देखना है, आई टेल यू, I myself tell you when to look into the book. I am telling you, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, 90% of the base will be Lakshmikant. I'll be only adding up where something that is not written in your book. जो कुछ भी हम अभी तक फंडामेंटल राइट्स में लिख रहे हैं, जो कुछ भी आपने लिखा है, ये आपकी बुक में नहीं है. एंड दिस इज समथिंग. देखो, मुझे बोला गया था कि प्रीलिम्स पढ़ाना है, सिर्फ प्रीलिम्स. बट मैं जहन इजाज ऑफ कुन जाए कि आई वॉन्ट यू पीपल आर कोचिंग हेयर. मतलब जो कुछ भी बेस्ट मैंने सीखा है, आई एम डिलीवरिंग दैट टू यू पीपल. जो आप कहीं पे भी पढ़ सकते थे, आप दिल्ली में जाते कहीं पे भी आप पढ़ सकते थे, दैट आई एम डिलीवरिंग टू यू. बी अश्योर्ड अबाउट इट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. जो ये चीजें आपने अभी तक पढ़ी है ना, मतलब दिस इज द टॉप क्लास मटेरियल दैट यू वुड हैव स्टडीड एनीवेयर इन द कंट्री. ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, देखो अब लिमिटेशंस है. इफ आई एम टू कवर द सिलेबस इन 60 आवर्स, और अगर खाली प्रीलिम्स पढ़ाना है या जो कुछ भी, सो देयर विल बी लिमिटेशंस. वी कैन नॉट ड्वेल दैट डीप इनटू ईच ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि फिर वो बहुत खिंच जाता है. अब जैसे आर्टिकल 44 है, मीन्स के हिसाब से पढ़ने बैठेंगे, आर्टिकल 44 एक दिन का टॉपिक है आपका. डीपीएसपी आप जो पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके पे उस पे आर्ग्यूमेंट्स क्या है एक तरफ के, दूसरे तरफ से क्या. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बेसिकली डू इट इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. लेकिन अभी हम प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे. तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर आपको बुक देखने की जब जरूरत होगी, दैट टाइम आई टेल यू रेफर टू योर बुक. ठीक है, अगर आप मतलब यहां से पढ़ रहे हो और वहां से बुक भी देखेंगे ना, तो थोड़ा सा आपका डाइवर्ट हो जाएगा अटेंशन, यहां से भी फोकस हट जाएगा. इसमें जो लिखा है ये सारी बुक में आपकी लिखा ही है. सो विल नॉट बी राइटिंग दैट पार्ट, दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर बुक. विल बी राइटिंग समथिंग एडिशनल. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन मैंने आपको बोल दिया, लिख लीजिए. आर्टिकल 21 provides that state shall extend right to free. Article 21 provides that state shall extend right to free and compulsory education to all children. Right to free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. In the age group of 6 to 14 years, in a manner as prescribed by law. In a manner as prescribed by law. The Constitution originally provided for free and compulsory education. The Constitution originally provided for free and compulsory education for all the children. The Constitution originally provided for free and compulsory education for all children from 0 to 14 years of age.
इन्होंने तो लिखा है 0 वाला बच्चा पढ़ेगा ही क्या, 1 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा, ये बस एकेडमिक है, 0 to 14 years. Under Article 45, which was a DPSP, which was a DP, Directive Principle. The Constitution originally provided free and compulsory education for all children from 0 to 14 years of age under Article 45, which was a directive principle. Thus, the right to primary education was not enforceable. Thus, the right to primary education was not an enforceable right. Thus, the right to primary education was not an enforceable right. लिख लिया. Later, the Supreme Court in Unikrishnan versus State of AP, लिखा है आपके सामने, rule that right to primary education is a fundamental right under Article 21. अब देखो, अभी ये फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है. सी द रोल ऑफ द, अब जो पहले दिन पढ़ा था आपने सुप्रीम कोर्ट का, गार्डियन, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सी हाउ इट प्रोवाइड्स द गाइडेंस थ्रू इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पार्लियामेंट एज वेल. कब की बात है ये? 93 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट. दे हैड इंटरप्रेटेड इट सो. Subsequently, Parliament in 2002 enacted a law on the same, that it is a fundamental right under 21A. ठीक है, लिख लीजिए इसको. Subsequently, the Parliament enacted the 86 Constitutional Amendment Act. Subsequently, the Parliament enacted the 86 CAA, Article 21A, that recognizes a fundamental right to primary education. The 2002 Act also added Article 51A, ठीक है, Article 51A सब क्लॉज के. 51A किससे डील करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, उसी का एक ड्यूटी है सब क्लॉज के. ठीक है. 2002 Act also added Article 51A सब क्लॉज के, which makes it a fundamental duty on the parents to provide opportunities for education to their children. Opportunities for education to their children, ठीक है, which makes it a fundamental duty on the parents to provide opportunities for education to their children between the ages of 6 and 14. In order to implement Article 21A, देखो अभी आपने देखा नेचर कैसे बदल गया. फंडामेंटल ड्यूटीज में पेरेंट्स पे ड्यूटी था, वहां पे स्टेट पे ड्यूटी था डीपीएसपीज में, बट दैट वाज नॉट एनफोर्सेबल, दैट वाज मियरली एन इंस्ट्रक्शन. इन फंडामेंटल राइट्स इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड वाज एन एनफोर्सेबल लॉ, है ना, justiciable law. Right of children to free and compulsory education. Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, which came into force from 1st April 2010. Some of the major provisions of this act are, दो चार provisions लिख लेंगे, इसमें updation अगर होगा कुछ देख लेना फिर. Major provisions will write. Every child in the age group of 6 to 14 years will be provided 8 years of education in an age-appropriated classroom. In an age-appropriated classroom. हाँ? Age-appropriated मतलब उसकी एज के साथ जो अप्रोप्रिएट हो क्लासरूम. ठीक है, 6 साल के बच्चे को आप 6th 7th 8th में नहीं डाल सकते, उसके हिसाब से उसके क्लास में, वो है राइट. इन एन एज अप्रोप्रिएटेड क्लासरूम इन द नेबरहुड, जो मैं आपसे बोल रहा था रेडियस की बात, 3 किलोमीटर के रेडियस की बात, इन द नेबरहुड. ठीक है, ये एक्ट में लिखा नहीं है, आप खाली नेबरहुड लिख देना इसमें. नो चाइल्ड, सेकंड प्रोविजन, नो चाइल्ड shall be denied admission for the want of documents. No child shall be denied admission for the want of documents. Number 3, the state shall be responsible
The state shall be responsible not only for the enrollment, the state shall be responsible not only for the enrollment of the children, but also to ensure the state shall be responsible not only for the enrollment of children, but also to ensure the attendance of the children, and completion of 8 years of elementary education.